echo of his call. Greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह। This morning I would like to share with you a different type of message. आज सुबह हम लोग एक विनीत अलग रीति से संदेश को सुनेंगे। During the past several months I have heard and seen a lot of brothers and sisters, those who have planned for committing suicide because of the reason that someone has misunderstood them. और पिछले महीनों में कई दिनों में मैं सुन रहा था कि कई लोग गलत प्रेमी के कारण, गलत सुझाव के कारण वो लोग अपने आप को आत्महत्या करने के लिए किए थे। Even though the relationship is good and in the proper way, they misunderstood each other. उन लोगों का अगर देखा जाए तो रिश्ता भी ठीक है, परंतु कई प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण वो सारे लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार भी थे। I want to ask you, do you have that experience in your life? मैं आप सभी लोगों को पूछना चाहता हूं कि आप लोगों के जीवन में इस प्रकार का अनुभव है क्या? Have you lost any relationship in your family or outside the family? और कई बार आप लोगों के जीवन में भी ऐसा हुआ कि गलत प्रेमी के कारण कि आप लोगों का रिश्ता टूट गए हैं? Are you very much worried about the reason why the family members have ignored you and they are having no understanding with you? और आप लोग ऐसा भी इस बारे में सोच रहे हैं कि क्यों आपका परिवार लोग आपको गलत सोच करके वो लोग आपको अलग कर दिया है वो? I know losing a relationship is very, very hard. और जब हम दूसरे के साथ हमारा संबंध को कि टूट जाता है उस समय हमें बहुत चोट पहुंचता है। It is highly unimaginable. और वो दुख हम लोग हमारा सोच के परे होता It है। is unbearable. और उसको हम सह नहीं सकते हैं। Unexplainable. और उसको हम बता नहीं सकते हैं। For no reason some people have misunderstanding with someone. और बिना कारण से एक दूसरे से गलत प्रेमी हो जाता है। In my ministerial life, I have thousands of brothers and sisters or having friendship with me. और मेरा सेवा के जीवन में हजार लोग मेरे साथ मित्र हैं। In various countries of the world, I have a lot of friends. Because of their relationship only, I am able to survive in this ministry. और इस भारत और भारत बाहर से बहुत सारे मेरा मित्र है और उन लोगों का रिश्ता के कारण आज मैं जीवित हूँ। In the meantime, if I lose someone from my relationship or friendship, I used to feel very sad. और मेरा मित्रता के समय में जब भी कुछ ऐसा समस्या आता है या हमारा रिश्ता टूट जाता है तब मुझे बहुत दुख पहुंचाता है। Sometimes I was also not able to sleep properly. और उस समय मैं ठीक से नहीं सो पाता हूँ। Sometimes I was not able to eat properly, even though I tried to contact them in different sources. और कई बार खाना भी नहीं खा सकता था और लोगों को अलग रीति से उन सारे लोगों को मैं संपर्क करने के लिए कोशिश करता था। Fortunately, I didn't go to the extent of committing suicide. और सौभाग्यवश मैं अपने आप को उस प्रकार का परिस्थिति में आत्महत्या करने के लिए नहीं सोचा। I easily feel sad when any of my friends ignore me or misunderstand me. और जब कोई मुझे कि अपना मित्र या अपना परिवार लोग रिश्ते लोग कोई भी मुझे कि अलग करते हैं या मुझे गलत सोचते हैं, I cry and sometimes I will bring the matter to the Lord. और मैं दुखी होता हूँ और रोता हूँ, परमेश्वर के सम्मुख में जाता हूँ। So I am successful in maintaining the friendship of my friends. और मैं एक दूसरे के साथ मित्रता बनाने में मैं सफल हूँ। This morning God is speaking to some of my brothers and sisters all over the world. और आज सुबह आप लोग जहाँ पे हो वो परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। If you are in this condition this morning, God has a word for you. और अगर आपका परिस्थिति भी इस प्रकार का भी है, परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है। Bible says when they defame you as evildoers, those who revile your good conduct in Christ may be ashamed,
you should have a good conscience. और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में भी जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। If someone is planning to get released from the relationship or defame you as an evildoer, अगर कोई आपके विरोध में बुरा करना चाहता है या लज्जित करना चाहता है, अपमान करना चाहता है, even though you do good, अगर शायद आप अच्छा काम कर रहे हो, you should not feel sad. और उसकी जब उस समय लोग इस प्रकार का लज्जित करते, हमें कि दुखी नहीं होना चाहिए। Bible says you should prove to them through your good deeds and your good conscience. और बाइबल इस प्रकार कहता है कि अपना शुद्ध विवेक के द्वारा, अपने अच्छा चाल चलन के द्वारा उन सारे लोगों को लज्जित रखो। You should maintain a good conscience and prove your brother or sister, anybody, that you are a good person. और आप शुद्ध विवेक के साथ दूसरे भाई और बहनों के सम्मुख में साबित कीजिए कि आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा चाल चलन कर रहे हो। Do not rebel against him. और उन लोगों को ऊपर विरोध मत कीजिए। Humble yourself. अपने आप को नम्र कीजिए। This morning, when you are able to maintain this, God will do wonders. जब आप इस प्रकार का व्यवहार रखेंगे, परमेश्वर आप लोग को जीवन में अद्भुत कार्य को करेंगे। And Bible says, on seeing your good conscience and good deeds, they will be ashamed of their deeds. और बाइबल इस प्रकार भी कहता है कि अपना शुद्ध विवेक रख करके अच्छा चाल चलोगे तो तब लोग लज्जित होंगे। Don't feel uncomfortable. और उस समय में किसी प्रकार का दुखी नहीं होना चाहिए। Don't try to find ways for committing suicide. और आप उस दुख के समय में अपने आप को आत्महत्या करने के लिए मत सोचिए। Don't stop praying. और उस परिस्थिति में प्रार्थना करने के लिए बंद मत कीजिए। Don't stop going to the church. और कलीसिया को जाने के लिए बंद मत कीजिए। If someone is misunderstanding you, अगर कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर गलत प्रेमी होता है, Bible says having a good conscience, that when they defame you as evildoers, those who are revile your good conduct in Christ may be ashamed. और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनकी विषय में भी जो मसीह तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। God says it is better if it is the will of God to suffer for doing good than for doing evil. परमेश्वर इस प्रकार भी कहता है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। If you are misunderstood by someone, don't panic or don't feel sorry, and pray, and through your good conscience make them to understand that you are a good person. और जब कोई आपके ऊपर गलत प्रेमी आता है उस समय आप दुखी मत होइए और निराश मत होइए, बरंग प्रभु के सामने शुद्ध विवेक रख करके अच्छा चलन को बरकरार रखिए। Also wait upon the Lord, God will do wonders. परमेश्वर की ओर से अपेक्षा कीजिए, परमेश्वर जरूर अद्भुत कार्य को करेंगे। Loving Father, we thank you so much for this wonderful time. प्यारे खुदावन, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। We hope that you have spoken to some people. मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मैं परमेश्वर वचन बताया है। We commit all the viewers to your wonderful hand. और उस सारे विश्वासी को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। And bless them. प्रभु आशीषित कीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। His call minister is 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144 2852 8282. Mobile phone and WhatsApp 91 98412 71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.